discuss about in this chapter principle of inheritance and variation. This chapter talks about how character is transferred from parent to offspring and how variation arises. So genetics, you will see the term in first 3 or 4 lines of NCERT. What is genetics? So genetic is the branch of science that study about inheritance and variation. Inheritance is the process by which character is transferred from parent to offspring or parent to progeny. I would like to mention here that progeny, offspring, child, next generation, all these 4 terms are same and used in the same text. Variation is the difference in the when we compare child to parents. And the science that study inheritance and variation both is called genetics. So humans know how to create superior varieties earlier, but he don't know actual science how these actual superior varieties are created. Humans just artificially select superior parents and cross them and make hybrid, but he don't know about the science. So before starting the chapter, there are some terminology used in the chapter that will be repeated several times. So as we have already discussed about genetics, the branch that study heredity and variation. Heredity is the transmission of character from parent to offspring. Now variation is of 2 types: hereditary variation and environmental variation. Hereditary variation is transferred from one generation to another generation, but environment variation is not transferred. For example, if somebody by incidence or by accident lost his finger, so this loss of finger will not be transferred to the next generation. This loss of finger because of accident and the organism has achieved or acquired in the lifetime. But if the variation arise in the genes, in the gametes that are going to make next generation, then it will definitely change the complexion of progeny. So Gregor John Mendel, he is also considered as the father of genetics. He studied his whole experiment on pea plant, but unfortunately his work was not published during his lifetime. It is also said that it was dominance of Darwin. So डार्विन के प्रेजेंस में उनके वर्क को इम्पोर्टेंस नहीं मिला, बट जैसे ही डार्विन का पीरियड ख़त्म होता है और इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके रिसर्च पेपर पर 3 साइंटिस्ट स्टडी इनको पेपर को पब्लिश कराते हैं. मेंडल के काम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया, इसके लिए कुछ रीजंस हैं. बिकॉज मेंडल का जो वर्क था वो उसका जो स्पैन था वो बहुत लंबा था. 7 साल तक उन्होंने काम किया और पहली बार बायोलॉजी के फील्ड में मेंडल ने मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ किया, डाटा को स्टैटिस्टिकल वे में एनालाइज किया और रिजल्ट प्रोड्यूस किया. इसलिए इनके वर्क को ज़्यादा रिलायबिलिटी मिलती है और इनका जो सैम्पलिंग साइज था वो बहुत ज़्यादा था, जिससे एरर होने के चांसेस कम हो. सो मेंडल ने क्या किया, कैसे किया, वो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स को लिया पी प्लांट में. कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो किसी प्लांट में है तो वो हमेशा एक्सप्रेस हो रहे थे, कुछ नहीं एक्सप्रेस हो रहे थे. तो ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, याद करना है, बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें ये नहीं बताता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है. अगर उसने जस्ट फॉर एग्जांपल सीड शेप का एग्जांपल ले लिया, राउंड एंड रिंकल्ड, तो आपको वहाँ पे समझ जाना होगा कि राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, वेदर ये क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है. सो कुछ और टर्मिनोलॉजी: फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस. सो फिनोटाइप
कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो दिखता कैसे है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसी फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन है, जितने जीन उसमें होते हैं, किस तरह के जीन हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फिनोटाइप इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन जीनोटाइप, बट जीनोटाइप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फिनोटाइप। जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप की वजह से जीनोटाइप नहीं होता, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे जीन्स में है, और वही इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है, वही इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाती है और हमको दिखाई पड़ती है। फिनोटाइपिक रेशियो, किसी भी पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ हमको दिखने में अंतर मिलेगा। तो कितने ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के हैं, उनका जो रेशियो है उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। और डेफिनेटली जब फिनोटाइपिक रेशियो अलग है तो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी अलग होगा। तो एक पॉपुलेशन में जो अलग अलग तरह के जीन कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल्स में, उनके रेशियो को जेनेटिक रेशियो बोलते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, जीन्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। एक जीन में दो एलील होते हैं, अगर ये दोनों एलील एक जैसे हैं तो ये होमोजाइगस कंडीशन हुआ। होमो मीन्स सेम। अगर एक जीन में अलग अलग एलील्स हैं देन इट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। डोमिनेंट जीन, ऐसा जीन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल टी लिया हमने और स्मॉल टी लिया तो ये हेट्रोजाइगस है, बिकॉज इस एक जीन पेयर में दो अलग अलग तरह के एलील्स हैं। इसमें जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन बिकॉज इट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव जीन और स्मॉल टी। तो जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होता है, जो नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव होता है। बट अगर हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी ये भी एक जीन है। यहाँ पर दोनों जीन एक जैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन इनको सप्रेस करने वाला डोमिनेंट जीन कोई नहीं है। सो रेसेसिव जीन इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, whereas dominant gene can be expressed in homozygous condition और heterozygous condition। इसमें भी एक्सप्रेस कर सकता है और इसमें भी एक्सप्रेस कर सकता है, दोनों में। हाइब्रिड, जब हम सुपीरियर पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में अलग अलग कैरेक्टर होंगे, लेकिन उनके जो प्रोजनी बनेंगे, एक ही प्रोजनी में दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर आ जाएंगे, तो इस तरह की प्रोजनी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। Back cross and test cross we will discuss later on with the help of suitable example so that it will be more clear.